Hello guys, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, अपने लाइफ को मजा होंगे. Welcome to my new vlog and welcome to my new very beautiful day. This is Miss Nina Khan and you are watching Lemon. Today I'm going to study Self of our Grade 7th edition book again. And as you all know that we are studying chapter number 2, Human Respiratory and Circulatory System. Today, in this chapter, we study the respiratory system. Today, our topic is respiration. Okay, first we read. Since all life processes use energy, every cell in the body needs an energy supply. The body gets its energy from a chemical reaction which takes place in the cells. The chemical reaction is called respiration. Respiration is a bit like burning. The fuel comes from the carbohydrates and fats in the food we eat. These are broken down during digestion into tiny molecules such as glucose. The oxygen needed to burn respiration. Aerobic means with air. Sometimes respiration takes place without oxygen. This is called anaerobic respiration. Anaerobic means without air. During respiration, the energy holding the glucose molecule together is released, usually in the form of heat. Carbon dioxide and water are produced as waste products. Respiration can be written as the word equation. Here's the equation, okay? Glucose plus oxygen is equal to carbon dioxide plus water and E plus energy. This means that when body cells are producing energy, they use up oxygen, reduce carbon dioxide and water, and so to keep producing energy, the body needs a supply of oxygen to get rid of oxygen, which could poison it. This is where breathing comes in. You breathe in inhale air which contain the oxygen you need. You get rid of the carbon dioxide when you breathe out exhale air. This exhaled air also contains water vapor. Today our topic is about respiration, okay? So you know what is respiration? Respiration हमारे पास हमारे जिस्म में जो भी हम खुराक करते हैं, हम जो काम करते हैं ना, हम किस चीज़ से करते हैं? एनर्जी से करते हैं. और जो हमारे अंदर ताकत आती है, जो एनर्जी आती है, वो कहाँ से आती है? खुराक से आती है. तो हम खुराक जब करते हैं तो उसका पूरे किस्म का जो है ना, उसका डाइजेशन होता है, उसका तोड़ फोड़ होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन में तब्दील हो जाता है और वो हमें फिर एनर्जी देता है. और वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम हो जाता है, रेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, बॉडी एनर्जी ले लेती है. इस सारे प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन. आपको यहाँ पे बताया है कि रिस्पायरेशन हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है जब फ्यूल जो है वो बर्न हो जाता है ना, जब वो जल जाता है, जब वो फ्यूल को जब हम आग लगा लेते हैं तो वो ऐसे बर्न हो जाता है जैसे वो इसी तरह जैसे फ्यूल बर्न होता है, उसी तरह हम जो खुराक करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे फूड में आते हैं, जो हम खाते हैं, वो भी इसी तरह से आती है. फिर यहाँ पे बात किया गया है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन की. वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक डिफिनीशन बता दूं कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज दैट respiration that include air or that needs air, okay? And anaerobic respiration is that respiration that done without air, that no need any air. ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट डिफिनीशन है. फिर वहाँ जो है डिटेल से हम आगे इसको पढ़ेंगे. आगे आ रहे हैं ये टॉपिक्स एरोबिक और एनारोबिक. एरोबिक होता है जिसमें ऑक्सीजन या कोई भी एयर इन्वॉल्व हो. एनारोबिक जिसमें कोई भी एयर इन्वॉल्व ना हो. यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं कि जब रिस्पायरेशन होती है तो जो एनर्जी होती है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ रिलीज हो जाती है एक जैसे कि वो एक हीट के फॉर्म में आ जाती है. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरह. यहाँ पे आप लोगों को पूरा वो डिटेल डायग्राम दिया गया है. अच्छा, इक्वेशन जो है वर्ल्ड इक्वेशन, मतलब एक लफ्ज में हम कैसे कर सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. ठीक है, रिस्पायरेशन भी वैसा होता है.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक बॉडी सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, और वो ऑक्सीजन को यूज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड सो टू कीप प्रोड्यूस, और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनको किस चीज़ की जरूरत होती है? ऑक्सीजन को लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करने की। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों खत्म करने की? क्योंकि वो इसमें पॉइजन मिला सकते हैं। पॉइजन मीन जहर। अच्छा, ये हमारे पास अब आया है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग नेक्स्ट पेज पे एक अच्छा सा एक डिटेल टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं इनहेल, और जो हम सांस निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सेल। इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं और एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। फिर डिटेल से फिर दूसरे पेज पे है ब्रीथिंग का टॉपिक, पेज नंबर 27 पर है ये डिटेल से, फिर आप वहाँ पे पढ़ लोगे। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब कर, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना, फिर बेल आइकन। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मुझे कोई गलती पेश हुई है तो माफ़ी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बोलती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द साथ में इस व्लॉग में, और अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट बताए। अल्लाह।